हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਡੇ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੇ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੇ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੇ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ: ਨਾउन ਫਾਰਮ, ਵਰਬਲ ਫਾਰਮ, एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। ये चारे फॉर्म्स किसी तरीके नाल आपां आपदे चार्ट विच एक्सप्लेन करते हैं या ऐड करते हैं, वो सारा तरीका तुहानूं असीं दस्सांगे। किवें आपां नूं डाटा आउंदा है, किवें अपना डाटा अगे लीड करना है, किवें डाटे नूं डिक्रीजिंग शो करना है, किवें इनक्रीजिंग शो करना है। इन्हां चारे फॉर्म दे विच आपां वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करांगे। हाँ जी, तो पहलां तुहानूं दसदा मैं एक चीज़ क्लीयर करदा, अपनी स्क्रीन ते जाके क्लीयर करूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਫਾਰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फ़र्क ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਡੇ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇੰਟਰੋ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक चार्ट आ चुके जिहदी आपां इंट्रो एंड ओवरऑल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं तुहानूं समझा दा, इहदे विच आपां नूं 3 साल दित्ते होए आ। 3 सालां दे विच्चों जिहड़े अज आपां रूल करांगे ਉਹ 2006 ਦੇ डाटा ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 2008 ਦਾ डाटा ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੈਟਿਕ डाटा ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2005 ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ डाटा ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ डाटा ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ डाटा ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डाटा ਦਿੱਤਾ ਹੈ वेस्ट डिस्पोजल का अमाउंट दी है, आप सिर्फ ये दस सकते हैं भी 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ अमाउंट सी, पर ਜਦੋਂ 2006 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ मूवमेंट उदों शो करांगे कि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ होगी, वध गई, घट गई, फ्लक्चुएट होगी, जो भी होगी। पर 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं शो कर सकते भी ये अमाउंट वध गई या घट गई। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ही शो करांगे कि ਇੰਨੀ अमाउंट सी। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1950 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, 2000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, 2030 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਘਟੂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 1998 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। 2000 ਦੀ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ मूवमेंट शो करूगी, 2002 ਦੀ मूवमेंट शो करूगी ਤੇ 2004 ਵਾਲੀ मूवमेंट शो करूगी। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਟੇ ਦੀ मूवमेंट ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ मूवमेंट ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਰੂਲਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵਰਬਲ ਫਾਰਮ। ਵਰਬਲ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ: ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਐਡਵਰਬ, ਡਾਟਾ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ मूवमेंट ਦੇ ਲਈ। मूवमेंट ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2010 ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2005 ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਵੀਮਨ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਵਿਮਨ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਵਿਮਨ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਵਿਮਨ ਵਾਸ 12,000 ਔਰ 12,000 ਇਨ 2005। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ मूवमेंट ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਵਿਮਨ,
वर्ब लगाती जिहड़ी कि रूल के अकॉर्डिंग है। सिग्निफिकेंटली आपां एडवर्ब लगाती, टू लगा के आपां डाटा लगाता, तो बाय लगा के आपां 10,000 लगाता इन 2010। जेकर हुण टू ते बाय दे विच की फर्क है, दोवां चों कोई एक चीज़ लगाउणी है। मैं एग्जाम्पल दिना तुहानूं, इत्थे क्लीयर की हुई है। जदों आपां टू लगाउणे आ तो डाटा जिन्ना हो गया, मैं एग्जाम्पल दिना है। हुण आपां अपने चार्ट ते चलदे हैं कि देखो हुण जेकर इत्थे परसेंटेज है ना, पहले 1998 दे विच परसेंटेज दित्ती हुई है 55, तो 55 तो 48 ते चली गई दूजे साल दे विच। जेकर तां आपां टू लावांगे तो उन्नी लिखांगे जिन्नी अगले साल विच होगी, तो जेकर आपां बाय लगावांगे तो इन्ना दोवां दा डिफरेंस लिखांगे बाय लगा के। 55 तो 48 तक चली गई लगभग, मतलब कि 7% का डिफरेंस आ गया। जेकर आपां टू ला के लिखांगे तो 48% आऊगा, जेकर बाय ला के लिखांगे तो वह गैप शो होगा बाय 7%। इन्हां दोवां चों तुसीं कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो नैक्सट तुहाडे कोल एक चीज़ आ गई है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए अपना सब्जैक्ट आ गया। सो दिस इज़ अवर सब्जैक्ट। इनक्रीज्ड वर्ब आ गई, रैपिडली एडवर्ब आ गई, टू लगा के आ गया 52,000 इन 2015। टू लगा के डाटा लिखता, तो इन लगा के आपां टाइम लिखता। ये अपनी एग्जाम्पल आ गई वर्बल फॉर्म दियाँ। तो वर्बल फॉर्म अपनी इस तरीके नाल डाटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रहे दूजे साल दे विच आपां डाटा एक्सप्लेन करना वर्बल फॉर्म की हेल्प नाल। तो आपां नैक्सट लीड करते हैं, इहदियां एग्जाम्पल्स अपने कोल पईआं। द ओवरऑल सेल ऑफ द कंपनी सब्जैक्ट, इनक्रीज्ड वर्ब आ गई, रैपिडली एडवर्ब आ गया, बाय ला के 20%, मतलब कि गैप है 20% का, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये अपना टाइम आ गया। ये होर एग्जाम्पल्स भी तुसीं रीड कर सकते हो। 5 एग्जाम्पल्स है वर्बल फॉर्म दियाँ। तीसरी एग्जाम्पल वर्बल फॉर्म नहीं हैगी, ये अपनी एक नाउन फॉर्म है जो आप अगे डिस्कस करांगे। हाँ जी, तो मैं तुहानूं इत्थे एक्सप्लेन करदा थोड़ा जिहा चार्ट दे विच। मान लो इत्थे आपां एक सब्जैक्ट लिया वेस्ट डिस्पोजल दी अमाउंट है। पहले साल में स्टैटिक शो करता जिमें कि द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वाज 2000 मिलियन टनस इन 2005। ये आप सिंपली एक्सप्लेन करता। हुण आपां मूवमेंट शो करनी है 2006 दे विच आपां कहांगे दिस फिगर सब्जैक्ट ले लिया, दिस फिगर फैल डाउन रैपिडली टू 1600 मिलियन टनस। इत्थे डाटा आ गया टू लगा के, ठीक है। टू लगा के आपां मंजिल लिखती भी जिथे अपना पहुंचा। तो जेकर आपां बाय ला के लिखते दिस फिगर फैल डाउन ड्रामेटिकली टू बाय 400 मिलियन टनस इन 2006, ये भी लिख सकते हैं, या इन द नैक्सट ईयर ये भी आप लिख सकते हैं। सारिया चीज़ां उस सीरीज़ दे विच है जिहड़ियां मैं तुहानूं बोलियां। मूवमेंट डाटा प्रजेंट करन दा एक तरीका है। हाँ जी, हुण आपां वधदे हैं अपने नाउन फॉर्म वाल। भी नाउन फॉर्म की चीज़ हुंदी है। सेम डाटे नूं तुसीं मूवमेंट नाल भी नाउन फॉर्म नाल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इहदी स्टार्टिंग हुंदी है देयर वाज, इत्थों रूल नंबर 2 है। देयर वाज तो स्टार्ट करांगे, फिर एक एडजैक्टिव लगावांगे, नाउन लगावांगे, ऑफ लगा के डाटा लगाउणा है, इन लगा के सब्जैक्ट लाउणा है। ओके, सारिया चीज़ों का ध्यान करना, कुछ आप स्किप नहीं करना गा। जिथे एडवर्ब लाउंदे सी उहदी जगह ते आपां एडजैक्टिव करता, जिथे वर्ब लाउंदे सी उहदी जगह ते नाउन करता। देयर वाज तो स्टार्ट करके आपां जिहड़ा डाटा प्रजेंट करता ते सब्जैक्ट उवें लगाता। एग्जाम्पल देखियो, देयर वाज आ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ 15% इन द परसेंटेज ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, हुण इत्थे आपां शो कीता है कि 15% तक दी इंप्रूवमेंट आई है। ऑफ ला के ना तुसीं हमेशा गैप लिखना है, इत्थे आपां सिर्फ गैप ही लिखांगे। देयर वाज आ गया ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। हुण कई बच्चों के माइंड में ये चीज़ डाउट होगा कि एडजैक्टिव ते नाउन ये सानू कित्थों मिलणगे, तो उहदी टेंशन भी तुसीं मेरे ते छड्ड दो। मैं तुहाडे सामने हुण एक लिस्ट रखण लग्या एडजैक्टिव ते नाउन दी। आ जिहड़ी लिस्ट है ये तुहाडे कोल सारियां वर्ब्स आ गईयां। जेकर इनक्रीजली किहड़े वर्ड यूज़ करने हैं तुहाडे कोल आ चीज़ आ गई। डिक्रीजली किहड़े वर्ड यूज़ करने हैं तुहाडे कोल आ चीज़ आ गई। तुसीं स्टैडीनैस मतलब कि कोई डाटा तुहाडा ना वधिया ना घटिया वो शो करने लई किहड़ी वर्ब यूज़ करनी है तुहाडे कोल वो भी चीज़ आ गई। तीनों वर्ब नूं बहुत सारी तुहाडे कोल वकैब क्लीयर हो गई है।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे जो वर्बल फॉर्म ਨੂੰ मूवमेंट ਵਿੱਚ यूज़ करना ਆਪਾਂ ਤਾਂ हमेशा ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ यूज़ करांगे ਜਦੋਂ पास्ट वाला टाइम ਦਿੱਤਾ डिपेंड करता उत्ते। ठीक है, फ्यूचर वाले लिए ਆਪਾਂ वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगावांगे, प्रेजेंट वाले लिए प्रेजेंट लगावांगे ਤੇ जेकर ਆਪਾਂ पास्ट ਲਈ यूज़ करना ਤਾਂ सैकिंड फॉर्म ਦਾ इस्तेमाल करांगे। जेकर हुण नाउन फॉर्म चाहिए आपां नूं वर्ब तो मिल गईयां ते आपां नाउन चाहिए तो उवें ही वर्ब तो किवें नाउन बनदा तो तुहाडे सामने लिखिया होया। आर्टिकल जिहड़ा यूज़ कीता इहदे नाल ए एंड वगैरह वो आपां एडजैक्टिव नाल यूज़ करांगे। तो आ चीज़ तुहाडे सामने क्लीयर हो गई, आ तुहाडा नाउन फॉर्म आ गया। ठीक है, हुण आपां नूं लिस्ट चाहिए है एडवर्ब दी ते एडजैक्टिव दी, तो वो लिस्ट भी तुहाडे कोल अगे पई है। हाँ जी, तो आ लिस्ट तुहाडी जिहड़े कोल आ गई हैगी है वो है एडवर्ब एंड एडजैक्टिव दी। वर्ब नाल एडवर्ब लगेगी ते नाउन नाल एडजैक्टिव लगेगा। याद रखियो, वर्ब नाल एडवर्ब लाउणी है ते नाउन नाल एडजैक्टिव लाउणा है। एडवर्ब ते एडजैक्टिव च यही फर्क है कि ਇਹਦੇ मगर जेकर आप LY लगी है तो एडजैक्टिव दे मगर LY हटा देंगे तो अपना सिर्फ एडजैक्टिव रह जाएगा। एडवर्ब के पिछों LY हटा दो तो तुहाडा एडजैक्टिव बन जाएगा। जिवें कि रैपिडली लिखिया है तो रैपिड बन जाएगा, शार्पली लिखिया शार्प बन जाएगा, ड्रामेटिकली वो मगर ALLY हटाई गई है अकॉर्डिंग टू द वर्ड। ओके, तो सारे वर्ड उस तरीके नाल तुसीं देख लियो भी बने हुए है। LY हटावांगे तो एडजैक्टिव बन जाएगा, बहुत ईजी चीज़ है। हाँ जी, तो आप अपनी दोबारा ग्राफ वाल वधदे हैं कि ये हुण अपना रूल दूसरा इनू नोट कर लियो। देर वाज एक एडजैक्टिव पिक करांगे, लिस्ट तुहानूं देती है। एडजैक्टिव नाउन पिक करांगे, ऑफ लगा के डाटा तो इन लगा के सबजैक्ट, ये सारिया चीज़ां आपां वारी वारी नाल पिक करांगे। हुण की चीज़ है कि देर वाज ए रैपिड इनक्रीज ऑफ 15,000 इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इन 2015। जिहड़ी लाइन आपां उपर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਵਰਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾउन ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਲ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਸਕੂਲ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵਰਬ ਹੈ, ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਟਾ, ਇਨ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾउन ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। देयर वाज ए रैपिड इनक्रीज ऑफ, देखो रैपिडली तो रैपिड बन गया, इनक्रीज्ड तो इनक्रीज बन गया क्योंकि नाउन फॉर्म की सैकेंड फॉर्म तो होंगी नहीं। ऑफ लगा के डाटा लगाता 15,000, इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन तो ला के आप सबजैक्ट लाता, इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इन 2015, ये अपना डाटा क्लीयर हो गया। ओके, जिमें कि अपनी ऊपर एक वर्बल फॉर्म च लाइन सीगी, द ओवरऑल सेल ऑफ द कंपनी इनक्रीज्ड रैपिडली बाय 20% एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, हुण इस लाइन नूं आपां वर्बल नाउन फॉर्म च किवें लिखिआ, देयर वाज आ, जेकर उत्थे रैपिडली सी तो मैं रैपिड लाता, इनक्रीज तो इनक्रीज आ गया, ऑफ ला के डाटा आ गया, इन ला के सबजैक्ट लाता, इन द ओवरऑल सेल ऑफ द कंपनी, टाइम जिहड़ा मर्जी लिख दो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपां सेम लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अपना टाइम आ गया। देर वाज ए 50% ड्रॉप, ये भी एक तरीका है नाउन फॉर्म नूं एक्सप्लेन करन दा, ते दोनों फॉर्म है जिहदे नाल आपां मूवमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपां हुण थोड़ा जिहा डाटे ते जाके तो एक नाउन फॉर्म दी एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। हाँ जी, तो इहदे विच हुण जिवें आपां एक लाइन लई सी है ना, इत्थे लै सकदे आपां देर वाज आ, आपां लाइन कीती सीगी 2000 तो 1600 ते आया सीगा, इसे मूवमेंट नूं आपां नाउन फॉर्म नाल शो कर सकते हैं। देयर वाज आ, ओके, डिक्रीज किस तरह का आया, रैपिड, देयर वाज ए रैपिड डाउनफॉल, नाउन फॉर्म आ गई ਉਹਦੀ। देयर वाज ए रैपिड डाउनफॉल ऑफ 400 मिलियन टन्स, गैप आ गया। ठीक है, देयर वाज अ रैपिड डाउनफॉल ऑफ 400 मिलियन टन्स इन द नंबर ऑफ, इन द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय लैंडफिल मैथड इन यूरोपियन कंट्री इन 2006। सारा अपना इन ला के सबजैक्ट आ गया, इन ला के डाटा आ गया। तुसी मैं नीचे टाइपिंग च भी तुहानूं आ रहा होएगा, तुसी इहनूं प्रॉपरली रीड कर सकते हो। तो सेम डाटा जिहड़ा वर्बल फॉर्म नाल दिता जा सकता है, उहनूं ਉਹਦਾ क्राइटेरिया चेंज करके, ਉਹਦਾ स्ट्रक्चर चेंज करके उस डाटे ਨੂੰ नाउन फॉर्म नाल भी ਆਪਾਂ ले सकते हैं। तो अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ दो फॉर्म अगलियां हैगियां बहुत ईजी है, तो इंटरस्टिंग भी है, तो
बहुत ज़्यादा वधिया भी है, मतलब कि ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बैंड स्कोर अच्छे मिल सकते हैं। हाँ जी, तो आप उस वाल लीड करते हैं। ओके, अपने को लगे आ गया एक्टिव पैसिव फॉर्म। एक्टिव का रूल सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, ठीक है। सबजैक्ट वर्ब ते ऑब्जैक्ट, सिर्फ इन्ना क रूल है, डेफिनेटली इन्ना की रूल है। सबजैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट डबल डाटा प्लस कनक्लूजन, ये मैं तुहानूं बाद चों दसदा इस वीडियो दे विच ही। आपां सिंपली की है सबजैक्ट की लै लिया दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्टिव फॉर्म दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां वर्ब्स यूज हुंदियां देखियो, फॉलोड, विटनैस्ड, रिकॉर्डेड, शोड, आइडेंटिफाइड। ये विच कोई भी इनक्रीज डिक्रीज नहीं शो होएगा वर्बल फॉर्म दे विच, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्ब आपां यूज कर लिया, तो अपने को तीजी चीज़ किहड़ी आ गई ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट ये आगे एन इनक्रीजिंग ट्रेंड, एन अपवर्ड ट्रेंड, आ डिक्रीजिंग ट्रेंड, आ डाउनवर्ड ट्रेंड, आ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, ठीक है। ये अपनी तीन चीज़ां आ गई अपने को। सबजैक्ट वर्ब, सबजैक्ट आप टास्क चो पिक करना है, वर्ब तुहाडियां इन्हां पंजां चो कोई हो सकती है, तो जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वह भी इन्हां पंजां चो कोई हो सकता है। एक्टिव फॉर्म किवें तैयार होगी अपनी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबजैक्ट आ गया, फॉलोड आप पहली वर्ब पिक कर ली, एन इनक्रीजिंग ट्रेंड पहला ऑब्जैक्ट पिक कर लिया, ठीक है। इत्थों तक तुहाडी लाइन पूरी हो गई। द नंबर ऑफ अपना रूल कंप्लीट हो गया सबजैक्ट वर्ब ते ऑब्जैक्ट। ओके, जो आ चीज़ कंप्लीट हो गई तो हुण आपां डबल डाटा देना। आपां की यूज़ करते हैं, एक तो फ्रॉम वर्ड यूज़ करते हैं, ओके, एक आपां वर्ड यूज़ करते हैं टू। इन्हां दोवां दे विचाले आपां डाटा देना उन्हां नूं डबल डाटा कहते हैं। ये तुसीं स्टैटिक जमा स्टार्टिंग दे लई भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग दे लई। पहली 2000 जिवें एक्सप्लेन किया ना कि वर्बल फॉर्म ते नॉन फॉर्म हमेशा दूजे साल लई इंप्लीमेंट हुंदे आ, पर जिहड़ी एक्टिव फॉर्म है पहले साल ते दूजे साल दोवां ते इंप्लीमेंट हुंदी है, उहदा मैं करके दिखाउणा, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबजैक्ट, फॉलोड वर्ब एंड इनक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जैक्ट। तो आप फ्रॉम लगा के पहला डाटा देता, फ्रॉम 12,000 इन 2010, इत्थों पहला डाटा आ गया, तो 2 लगा के आप दूजे साल का डाटा एक्सप्लेन करता। पहला डाटा आ गया तो इत्थे अपना दूजे साल का डाटा आ गया, फ्रॉम 16,000 इन 2013। इत्थे ये चीज़ अपनी क्लीयर हो गई कि आप डाटा किवें देना है। जिवें कि मान लो तुहाडे कोले 2015 च 2 मोबाइल सी, तो 2018 दे विच तुहाडे कोले 5 मोबाइल हो गए, तो आपां की कहांगे द नंबर ऑफ मोबाइल्स फॉरवर्ड एंड इनक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम 2 in 2015, 2 in 2015 to 5 in 2016। 2016 च तुहाडे कोले 5 हो गए, तो इट मीनस कि इस तरीके नाल आपां इहनूं नॉन फॉर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ राइज ऑफ, आ राइज मतलब कि इनक्रीज, इत्थों नॉन फॉर्म च कोई भी वर्ड पिक कर सकते हो। आ राइज ऑफ 4,000 स्टूडेंट्स, मतलब कि राइज ऑफ लिख के ना, जेकर डिक्रीज होया तो डिक्रीज ऑफ लिख के पहला आप डाटे का गैप 4,000 स्टूडेंट्स, जिमें कि 12,000 तो 16,000 के विचाले इन 3 ईयर्स, फिर टाइम का गैप, पहला स्टूडेंट्स का गैप, इनू आप लाइन का कनक्लूजन करना कहने हैं। तो एक चार्ट पिक करके उहदे विचों पूरी लाइन लिख के दिखाने आप। तो मान लो कि अपने को वाला चार्ट है, पॉपूलेशन वाला चार्ट है, आप अफ्रीका की गल करते पे हैं। अफ्रीका का हुण मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि कोई भी चार्ट होवे 1950 दे विच मूवमेंट नहीं शो कर सकती, पर एक्टिव फॉर्म आपां यूज़ कर सकते हैं। अफ्रीका की गल करते हैं तो अपने को 11% सीगा अप्रोक्सीमेटली, तो उदों बाद चला गया है 50 सालों के विच अप्रोक्सीमेटली 38% ते। ओके, ये बहुत वधिया लाइन बनेगी अपनी। हाँ जी, तो मैं उस लाइन नूं लिखण लग्या। the percentage of city population, सॉरी हाँ पहला सब्जेक्ट आ गया है, द परसेंटेज ऑफ सिटी पॉपूलेशन इन अफ्रीका। हमेशा कंट्री का नेम का पहला लैटर कैपिटल रखा करो। ये अपना सब्जेक्ट आ गया, फिर आप वर्ब पिक कर ली फॉलोड,
कोई भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬ ਮੈਂ 5 ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਲੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋਡ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਫੋਲੋਡ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਤੇ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ 11% in 1950 to 38% in 2000। ओके, ये तो लाइन कंप्लीट होगी। फिर आप लिखांगे एन इंक्लाइन ऑफ, इत्थे हुण आपां कनक्लूजन दे रहे हैं एन इंक्लाइन ऑफ पहला डाटे का गैप एन इंक्लाइन ऑफ 27% इन, फिर डाटे का गैप इन 50 ईयर्स। आ तुहाडा कंप्लीट हो गया पूरा डबल डाटा। इस तरीके नाल आपां इहनूं लिख दिंदे हैं। ओके, तो उस तरीके नाल हुण आपां पैसिव फॉर्म भी करांगे। तो पैसिव फॉर्म क्वाइट क्लीयर है। आ पैसिव फॉर्म का रूल है, ऑब्जैक्ट पहला लगावांगे, ऑब्जैक्ट की लिस्ट उही है, वाजवर लावांगे, वाजवर ला के थर्ड फॉर्म लावांगे, बाय लगा के सब्जैक्ट लगावांगे। जिवें कि एन अपवर्ड ट्रेंड वाज फॉलोड बाय द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, बाद चो बिल्कुल सेम है। तो पैसिव फॉर्म दे विच कल्ला फ्रॉम तो पहला ही आपां चेंज करना है, फ्रॉम तो बाद नहीं चेंज करना। जिवें कि इत्थे आ चीज़ है ना, द परसेंटेज ऑफ सिटी पॉपूलेशन इन अफ्रीका, इहनूं आपां इसे तरीके नाल पैसिव च किवें लिखांगे, मतलब कि एन इनक्रीजिंग ट्रेंड वॉज, इत्थे आपां वाज फॉलोड बाय ला के हुण वाज ला के थर्ड फॉर्म लाती, तो बाय लगा के हुण आपां सब्जैक्ट लगाउणा बाय दा परसेंटेज ऑफ सिटी पॉपूलेशन। ओके, बाय द परसेंट। तो जिहड़ा फ्रॉम तो लैके आपां अगे डाटा दिता सीगा अपना सिमिलर वे नाल उत्थे आ जाए। बिल्कुल सेम वे नाल आ जाएगा। कल ही आपां फर्स्ट लाइन चेंज की है, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। दोवां नूं ध्यान नाल देख लो, इन्हां विच होर कोई भी फर्क नहीं गा। आई होप कि अज की वीडियो के तुहानूं चारों फॉर्म बहुत अच्छियां लगियां होणगीਆਂ। इन्हां चारों फॉर्म नूं एक एक्सपैरीमेंट करके देखियो, तो जदों भी तुसीं कोई टास्क रीड करोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾउन ਫॉर्म है, वर्बल फॉर्म है, आ नाउन लग्या होया, वर्ब लगी हुई है, की चीज़ लगी है। तुहाडे कोल चारों टास्क सॉल्व है, ये इंटरनेट तो पिक किए हुए टास्क है। ओके, तो तुहानूं पता लगेगा कि यह चीज़ किवें चारों चीज़ां इंप्लीमेंट होंदियां। हजे आपां बहुत सारियां वीडियोज़ बनाउणियां, टास्क 1 नूं पूरा पीक ते लैके जाना है, 9 बैंड तक आपां इहनूं लैके जाना है। तो सारी वीडियोज़ नूं कंटिन्यू नाल जुड़े रहो। इस तरीके नाल जिवें तुसीं नाल जुड़े रहोगे तो सानूं मोटिवेशन मिलती है होर वीडियोज़ बनाउण दी। आई होप कि जो भी तुहानूं इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरी वर्डिंग तुहाडे तक करैक्टली दिमाग विच बैठ रही है, तो जो भी गल्लां समझा रहे हैं उन्होंने तरीके नाल वीडियो रिवाइंड करके देखो, आप एक्सपैरीमेंट करके देखो, तो सारियां चीज़ां तुहाडे सामने दिमाग 'च बैठणगीਆਂ। आई होप you are having a wonderful experience through our videos. Thank you so much, and please don't forget to share and subscribe our channel. Thank you.